today's our topic is enteric fever. तो मैं डॉक्टर सना से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज इसको स्टार्ट करें. So for the today, our topic is enteric fever. So what is enteric fever? Enteric fever is basically a clinical syndrome characterized by constitutional and gastrointestinal symptoms and headache. So typhoid fever is an acute illness associated with fever caused by Salmonella typhi. It can also be caused by Salmonella paratyphi, which is of less severe. Sources of infection. So what can be the sources of infection? It can be primary or secondary. So primary sources are feces and urine of cases and carriers. Fecal carriers are more frequent than urinary carriers. So what can be the secondary sources? It can be contaminated food, water, flies, fingers, and milk. Incubation period. So what incubation period is usually 10 to 14 days, but it can be shorter as 3 days, or it can be as long as 21 days. So before proceeding to the clinical features, I just want to have a quick review on the pathogenesis of typhoid fever. So enteric fever is basically after the few days of the bacteremia, the bacilli localize mainly in the lymphoid tissue of the small intestine. The typical lesion is in the Pierce patches and follicles. These Pierce patches becomes inflamed at first and then ulcerate and ultimately heal, but during the sequence, they may perforate or bleed. So what are the clinical features? It is divided into the week timelines. Like in the first week, it can be the patient can present us with the malaise, headache, fever, and fever is basically a step ladder pattern, 4 to 5 days, and relative bradycardia or pulse temperature dissociation and coated tongue. Like basically in this week we can see the tongue which is coated with raw tips and edges, and often the constipation is also observed in adults, but basically children present with diarrhea and vomiting predominantly. In the second week, 7th and the 10th days, rose spots may appear on the abdomen, mild hepatosplenomegaly, and constipation is basically replaced by diarrhea and abdominal distension. Third week, so what can be third week? In mild cases, basically, toxemia abates and gradual fall of temperature, but in severe cases, apathy, toxemic delirium, disorientation, and if untreated, high risk of intestinal hemorrhage and perforation is also known. Moving on to the diagnosis, basically the gold standard diagnostic tool these days is blood culture. If we go for the CBC usually show relative leukopenia. And these days, basically, previously Widal test and Typhi dot were recommended, but now the Widal test and Typhi dot are no more recommended because of its limited accuracy, low sensitivity, and false positive results. So CBC may show the decreased WBC count initially, but can raise in third weeks onward. In the second week, ultrasound abdomen can be significant because it can show us the hepatosplenomegaly, mesenteric lymph nodes enlargement, and bowel thickening and fluid effusion. Uh, complications? Complications like intestinal hemorrhage, shock, and blood and stool can also be seen. Whereas septicemia, if the person goes into the septicemia, it can show up with the abdominal tenderness, most likely in the third week, and we can get lobar pneumonia, cholecystitis, renal failure, myocarditis, meningitis. Moving on to the treatment, the first line antibiotic is Cetron, which is a sulfonamide group, and it is given in the 2-tablet BD dose, and or ampicillin 500 mg 2 capsule TDS. Second line antibiotic can be ciprofloxacin 750 mg BD, ofloxacin 400 mg BD for 10 days, and third line antibiotic can be azithromycin 500 to 1000 mg daily for 4 to 7 days. Basically, the whole treatment goes for 14 days. But if the conditions are less severe and it is mild, we can continue the treatment for 5 days also, and it all depends on the condition and severity of the patients.
थैंक यू। कोई डिस्कस करना चाहता है कोई और मेडिसिन के हवाले से? जी, इसमें फोर्थ जनरेशन सेफ्सपेन वो इसमें मेंशन नहीं थी, आई एम सॉरी। इसमें फोर्थ जनरेशन सेफ्सपेन भी दी जा सकती है, द कंडीशन इज सिवियर, तो उसमें जो है ना हम इंजेक्टेबल ट्रायोक्सान 2 ग्राम ओडी की डोज पर भी हम इनको दे सकते हैं, एंड देन वी कैन। फिर हम लोग तो फर्स्ट लाइन बना के कर रहे हैं इसको सेफेक्सेन, इसको आखिर में फोर्थ ट्राई लेना चाहिए सेफेक्सेन का। शुरू में हम फर्स्ट लाइन इसको लें, या हमारे पास अगर पेशेंट आ रहा है सस्पेक्ट कर रहे हैं, सर हो सकता है कि हम उनकी सिवियरिटी को भी चेक कर सकते हैं कि पेशेंट कितना सिवियर हो सकता है। अगर हम लोग इस पर चल सकते हैं, अगर हमारा पेशेंट इसको रिस्पॉन्ड कर देता है, तो क्योंकि हम लोग तो ब्लड कल्चर के लिए भी वेट करेंगे, हमें 7 डेज तो हम लोग को ब्लड कल्चर की रिपोर्ट लग जाती है। इसके बाद हम इसकी इम्पेरिक ट्रीटमेंट अगर हम स्टार्ट करना चाहें, बिकॉज वी आर नॉट श्योर कि ये टाइफाइड है भी कि नहीं, तो हम इस तरह से फर्स्ट लाइन लेके इसको चल सकते हैं। अगर हमारे ब्लड कल्चर में सैल्मोनेला टाइफाइड आ जाता है, तो फिर हम इसको ऑनलाइन फिर हम इसको जो है हम उसकी ट्रीटमेंट पे फॉलो कर सकते हैं टाइफाइड की। और कार्बीपेनम भी दे सकते हैं, एक वो भी है कि अगर रेजिस्टेंट है ब्लड सर कल्चर में आ ऑल रहा डिपेंड्स है। ऑन द ब्लड कल्चर हाँ, रिपोर्ट आजकल तो जो हमारे पास कार्बीपेनम आती है। ज़्यादा यूज हो रही है। तो ब्लड कल्चर कब करवाएं हम? जैसे अगर पेशेंट हमारे पास यूजुअली प्रेजेंट करता है कि हमें 7 डेज हो जाते हैं, 7 डेज के बाद बुखार नहीं उतर रहा होता, तो पेशेंट हमारे पास ऐसे ही प्रेजेंट कर रहा होता है। वैसे भी 10 डेज तक अगर पेशेंट को फीवर रह रहा होता है, एंड अगर हम इसके पूरा पैटर्न पूछते हैं, सारी चीज़ें पूछते हैं, तो होता ये है कि हम उसको एम्पेरिकली तो हम इसको टाइफाइड की लाइन पर हम मैनेज करना शुरू कर ही देते हैं। और फिर अगर इसके बाद हमारे पास ब्लड कल्चर, और उसी वक्त ही हम जब हमारे पास अगर ये 7 डेज या 8 डेज के बाद आता है, तो हम इसको फिर ब्लड कल्चर करवा ही लेते हैं। पेशेंट तो इतने एंटीबायोटिक्स लेकर आ रहा होता है हमारे पास, तो लेकिन कैसे हम ब्लड कल्चर? ये तो हमारे यहाँ का एक बेसिकली ये तो हमारा इसके पास गए एंटीबायोटिक्स लेकर आ ये रहे तो हैं, हमारी फॉल्स ये तो हमारी प्रैक्टिस का मसला है तो फिर क्या एडवाइस करें ब्लड कल्चर के लिए? कि वो उसमें हम मेंशन कर सकते हैं कि पेशेंट हैज ऑलरेडी टेकन दीज एंटीबायोटिक्स बिफोर, वो हम ब्लड कल्चर की रिपोर्ट करवाने से पहले उनको मेंशन कर सकते हैं। फिर यानी कि पेशेंट को दोबारा बुलाएं? ऑब्वियसली पेशेंट फॉलोअप के लिए तो आएगा ही, उसको तो बुलाना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग अगर उसका एम्पेरिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, तो हमें उसको फॉलोअप के लिए तो बुलाना पड़ेगा। सही है। हमारे यहाँ लोग वो बहुत कराते हैं अपने फायदे के लिए, टाइफाइड और नहीं, ये तो बिल्कुल अब ये है ही नहीं, वो तो मना है, लेकिन फिर भी बहुत अब ये रेकमेंडेड नहीं है, बिकॉज विडॉल टेस्ट और टाइफाइड और दोनों रेकमेंडेड नहीं है, तो बेसिकली बेसिक्स टू लेकिन कराते हैं। पॉइंट डाल दिया। हाँ, डाला है। देखिए बात ये है कि जब ये टॉपिक चूज़ किया गया था, तो इसमें यही बातें शुरू स्टार्ट करनी थी हमें कि इस वक्त ये जो केस है पाकिस्तान में इसकी प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है, और इसकी प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है, और इसका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अनएथिकल हो रहा है। क्योंकि ये बात पहले हुई थी, और जब ये इस तरह से 2016 में आई थी, जब मुझे याद नहीं एग्जैक्ट ये केस हुआ था, और बहुत ज़्यादा उसकी मल्टी एच हो गया था। उसके बाद से बहुत सारे जो चीज़ें थी बहुत सारी चेंज हो गई थी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम चूँकि सारा अभी डिस्कस कर चुके हैं और तो अभी डायग्नोसिस की तरफ आए हैं, तो अभी इसमें टाइफाइड द्वारा इस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, और ये गवर्नमेंट की तरफ से भी बात आ गई है कि इसमें अगर कोई इलीगल प्रैक्टिस करता है, अभी भी कराची के अंदर बहुत से डिस्पेंसरीज ऐसी हैं जहाँ शायद ये हो रहा हो, लेकिन अब बहुत सी फार्मास्यूटिकल ने, बहुत से लैब वालों ने तमाम जबकि टाइफाइड वगैरह की सप्लाई बंद कर दी। ऐसा कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि टाइफाइड की किट्स वगैरह बहुत ही कम मुश्किल से वो मिलती हैं। तो जो दूसरी बात जो डॉक्टर मुश्तबा ने कही, जो देखिए हमारे पास जीपी जब आता है, जीपी के पास आता है, जीपी से लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 2 दिन में रिजल्ट आ जाए, तो वो अपनी तरफ से शुरू कर देता है। अब फर्स्ट लाइन में आप लोग जो सी को पता है कि एमॉक्सिल का बड़ा रोल था टाइफाइड में, लोगों को फेनिकोल थी, टैबलेट थी जो बहुत ज़्यादा दी जाती थी। अगर आप अपनी जो अपनी फार्मेसी की गाइड देखें और अपनी फार्मेसी की बुक देखें, अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ चेंज हो रहा है। अब पहले सिप्रोक्सिन था, अब ये एक वक्त ऐसा आएगा सारा सारा जहाँ से एजिथ्रोमाइसिन पे ये चला गया, तो ये भी उसके साथ एक रेजिस्टेंट हो गई। तो अगर आपके पास कोई इस तरह का पेशेंट आता है, हम इस वक्त बात कर रहे हैं अपने सिनेरियो में, हमारे पास आता है और पेशेंट कहता है कि हड्डी का बुखार है, टाइफाइड बुखार है, तो पेशेंट इस तरह से आ रहा होता है, तो हमें उसको ये कन्विंस करना चाहिए कि आप 2 दिन ट्रीटमेंट लिया, और कल्चर का भी मेरे ख्याल से तो सबसे 2 दिन तो वेट करना होता है,
सर मैक्सिमम 3 डेज हमारे लग जाते हैं अगर हम कहीं अच्छी जगह से भी ब्लड कल्चर नहीं, कराते हैं। अगर एक पेशेंट ऑलरेडी एंटीबायोटिक ले रहा है जी। तो हम उसको कल्चर फॉलो तो नहीं करवाएंगे। हम तो ये तो कहेंगे कि अपने एंटीबायोटिक को जी। ब्रेक करें, वो 48 घंटा ब्रेक करे, जो करे, तो पेशेंट क्योंकि वो उसको फौरन ट्रीटमेंट चाहिए तो वो आमतौर से इंतज़ार करता नहीं है, आमतौर से वो इंतज़ार करता नहीं है। और तो अगर कोई समझदार अगर तो ये काउंसलिंग कर दे तो बेहतर ये होता है कि वो उसको कन्विंस करने से कर दे। सर तो इसमें जो इससे बात मैं लेता हूँ, ये डिपेंड करता है हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर ना, कि पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है ना। सर। एक पेशेंट नया पेशेंट आ रहा है फीवर के साथ, ठीक है ना, एक पेशेंट नया है, ठीक है ना, आप उसको देखना असिस्ट कर रहे हैं। एक पेशेंट जो है वो कहीं से मेडिसिन लेता हुआ आ रहा है, आप उसको हम क्लिनिकली असिस्ट करें कि उसकी सिम्टम्स क्या आ रही है। अगर सिम्टम्स आ रही हैं, आप समझ रहे हैं कि उसको एंटेरिक लग रहा है, फिर तो आप कल्चर की पे इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है इसमें। आप तो उसको एंटीबायोटिक दें अच्छी, ठीक है ना, ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे जाएँ, जैसे उन्होंने कहा ना कार्बापेनम दे, कार्बापेनम देना पड़ेगा हमें, इसलिए कि सेफ्ट्रैक्सोन भी रेजिस्टेंट हो जाएगा उससे भी, हो या फिर उसको हाई डोज में सेफ्ट्रैक्सोन देना पड़ेगा, ठीक है ना। 2 मसा यानी कि 100 मिलीग्राम पर बॉडी के वेट के हिसाब से देना पड़ेगा, इसलिए कि वो काम ही नहीं करेगा। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट कैसा है आपके पास, आप कहाँ से मेडिसिन लेता हुआ आ रहा है, उसकी क्लिनिकल हिस्ट्री क्या है, हम इसको एग्जामिन करें, एब्डोमेन को देखें, हेपेटोस्प्लेनिमेगाली आ रही है कि नहीं आ रही है, टेंडरनेस है कि नहीं है उसको, लोबार नमूनिया खुदा ना खास्ता उसका डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। खास खास तौर पे जो हम जो यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं आलमगीर में, हमारा पेशेंट मेडिसिन लेते हुए आते हैं अक्सर, या जो वो पुराने जो हमारे जो फैमिली जो पुरानी चल रही है उनको पता है कि यहाँ काम हो रहा है, वो 3 दिन 4 दिन घर पे वेट करते हैं। अभी भी एक पेशेंट मेरे पास आया, 3-4 दिन वेट करते हैं, फिर डायरेक्ट हमारे पास ही आते हैं सीधे कि यार यहाँ हमारा काम हो जाएगा, फिर तो हम उसके टेस्ट करवाएं, ठीक है ना। वरना हम सिंपल सीबीसी करवा लें, सीबीसी से हमें अंदाजा हो जाएगा, ल्यूकोपीनिया मिल जाएगा हमें, ठीक है ना। अगर लोअर साइड के ऊपर डब्ल्यूबीसी काउंट है, आप उसको एंटेरिक जबान उसकी देख लें, आप उसकी हिस्ट्री ले लें, आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो मेन चीज़ असल जो रोकने की चीज़ है, अगर कोई नया पीछा आ रहा है तो हमें ड्रग रेजिस्टेंट को रोकना, जैसे सर ने बताया, ठीक है ना। एमटीआर बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है, ठीक है ना, इवन एजोमिक्स काम नहीं कर रही आजकल। उसकी वजह क्या है कि हमने इसको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कोविड में यूज़ किया है, ठीक है ना। उसकी वजह से आप हर जहाँ आरटीआई आता है लोग फ़ौरन एजोमिक्स लिख के देते हैं, बस अब इवन यानी कि अंडर द टेबल जो है काउंटर जो है वो जाते हैं वहाँ पर जाके लेके एजोमिक्स लेके आ जाते हैं लोग कि भाई हाँ बस ये काम करेगी, गला खराब हो ले लो, ठीक है ना। हालांकि ये ड्रग जो मेडिसिन आई थी ये एमटीआर टाइफाइड के लिए आई थी, ठीक है ना। अब आप ले दे के हमारे पास या तो सेफ्टैक्सोन है या मेरोपेनम है, सेफ्टैक्सोन भी बाज़ दफ़ा काम नहीं करता, तो फिर मेरोपेनम पर लाना पड़ता है। तो इसमें असिस्टमेंट बहुत ज़रूरी है कि हमारा असिस्टेंट होना चाहिए क्लिनिकली, कि हम खुद को असिस्ट करें इसको पेशेंट को प्रॉपरली, तो उसके हिसाब से उसको मैनेज करें, ठीक है ना। इसमें हम सारी पूरी हमारी टीम मौजूद है, मतलब इसमें जूनियर भी है सीनियर भी, नहीं समझ में आता डिस्कस कर लें, ठीक है ना। इससे क्या है कि पेशेंट बेनिफिट भी होगा, आगे लॉन्ग टर्म के अंदर ड्रग रेजिस्टेंस भी डेवलप नहीं होगी और पेशेंट भी ठीक हो जाएगा और कम से कम कॉस्ट के अंदर काम भी हो जाएगा, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा लेट जाए, इसमें आपने कोई डिफरेंशियल डायग्नोसिस की है, इसके अलावा क्या क्या जी जी हाँ, मतलब सर डिफरेंशियल डायग्नोसिस में तो हम अगर फीवर के साथ हमारे पास पेशेंट आ रहा होता है, नहीं डिफरेंशियल नहीं हुआ, डायग्नोसिस हाँ, डीडी नहीं हुई थी सर, DD इसलिए हम लोग को डॉक्टर डीडी साहब नहीं ने हुई एक थी। बात की, सबसे पहले उन्होंने जो अच्छी बात ये थी कि हम अगर स्ट्रॉन्ग हैं क्लिनिकल हिस्ट्री से, जो आपने सीबीसी में देखा, आपकी क्लिनिकल हिस्ट्री में क्या क्या ऐसी चीज़ें होंगी जिसका वो आपकी जाएगी डायरेक्ट पे जाएगी। सर बेसिकली हम इसके पहले तो फीवर की हिस्ट्री लेंगे, जैसे सर ये ना यहाँ सर बेसिकली टाइफॉइड की हिस्ट्री में हम सबसे पहले तो इसका फीवर पैटर्न हम पूछते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि स्टेप लैडर पैटर्न होता है, ठीक है। इसमें ये होता है कि दिन में जो है वो हल्का फीवर होता है और फिर बढ़ते बढ़ते पूरे दिन में रात तक जो है वो हाई ग्रेड फीवर हो जाता है, ठीक है। फिर इसका प्रोलॉन्ग जो है वो एक ये होता है कि लाइक 7 to 10 डेज तक एक है पेशेंट है जो फीवर के साथ प्रेजेंट कर रहा होता है, और भी कोई चीज़ें जैसे बेसिकली कोई करीब से उन्होंने कोई दवा ले ली होती है, कुछ भी होता है, उसको भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते और फीवर जो है वो कंटिन्यू रहता है। इसके अलावा सर हमारे पास ये फीचर्स भी हो सकते हैं कि एक हमारे पास इनिशियली जो है वो पेशेंट है कॉन्स्टिपेशन के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है, और फिर अगर लेटर स्टेजेस में आता है तो वॉमिटिंग और डायरिया के साथ भी हमें प्रेजेंट कर सकता है एज अ टाइफॉइड
मतलब इसके डीडी क्या हो सकते हैं? देखें एक सर patient हमारे देखिए, पास आ एक रहा है हमारे ना, पास फीवर का अगर पेशेंट आता है, कोई भी पेशेंट है, हाँ। सबसे पहले तो हम उसको पहले तो उसकी फीवर की हिस्ट्री है कि राइगर्स हैं, चिल्स हैं। अगर राइगर्स एंड चिल्स के साथ आ रहा है साथ में, तो फिर हम मलेरिया को भी एक्सक्लूड आउट करेंगे सबसे पहले, फिर हम यूटीआई को भी इसमें एक्सक्लूड आउट कर रहे होते हैं, वेरी गुड, और फिर इसके बाद डेंगू को हम रूल आउट कर रहे होते हैं। तो ये बेसिक हमारा होता है कि जिसमें हम पहले इन चीज़ों को रूल आउट कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद अगर हम अर्जेंटली हम सीबीसी करा रहे होते हैं, तो उसमें जो हमारे पास ल्यूकोपीनिया जो होता है ना, वो मेन हम लोग इसमें हमारी फिर थिंकिंग यही जाती है कि मोस्ट प्रॉब्ली ये जो है ना इंटेरिक की तरफ जा रहा है, बिकॉज बाकी सारे जो है ना उसमें हमारे पास WBC काउंट हम लोग को रेज्ड मिलेगा, जो बाकी सारे फीचर्स जो होंगे मतलब इसमें। देखें ये हमें एक एडवांटेज है हमारी जो प्रैक्टिस है ना, हमारे पास लैब की फैसिलिटी अर्जेंट की है जिसमें हम बेसिक टेस्ट फौरन करवा सकते हैं, हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। सीबीसी हमने करवा लिया, सीआरपी हमने करवा लिया, डेंगी एमपीआईसीटी हमने करवा लिया, 2 घंटे में हमें पता चल जाएगा ये एक्सक्लूड हो गया। फिर हम उसको कर लेंगे, कोई वायरल दूसरा कोई वायरल है या फिर एंटेरिक है, ठीक है ना। यूटीआई में थोड़ा टाइम लग जाता है, यूरिन डीआर में उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन उसकी जो लेकिन सर इसकी जो हिस्ट्री और हिस्ट्री उसके से जो पता चल जाएगा, सिम्टम्स जो अंदाजा होंगे हो वो जाएगा। हमें पता चल जाते हैं। अच्छा, बेसिकली देखिए जो आपने बात की उसमें तमाम चीज़ें एक एक चीज़ एक्सक्लूड करके अल्टरनेट थी। जी अगर आप इंटेरिक की बात करते हैं तो अल्टरनेट थी, जैसे डॉक्टर साहब ने कह रहे हैं डेंगू वगैरह मलेरिया है, उसके साथ रैशेस भी हो जाते हैं। क्लिनिकली बात कर रहा हूँ मैं, उसकी बात नहीं कर रहा कि आपने एग्जैक्ट क्या करवाया। तो मेनली जो कोटेड टंग और कोटेड उसके साथ एब्डोमिनल पेन, जी। ये जो है मेन जो है इसके फीचर्स होते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि ये सवाल पर इसकी मॉर्टेलिटी है क्या, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है? सर कॉम्प्लिकेशंस इंटेरिक की कोई बेसिकली है ना, कॉम्प्लिकेशन देख सकते हैं आप बताइए। हाँ, और मेजर कॉम्प्लिकेशन है कोई इसकी? सेप्टिसीमिया और फोकाई होता है। आप ज़्यादा अपडेट नहीं बताएं। और हेमोराइटिस, हेमोराइटिस क्या बताता है? लेकिन जो मेन जो कॉम्प्लिकेशन है जिससे मोर्टेलिटी वो परफोरेशन है। आइलियर Intestinal प्रॉब्लम, hemorrhage आइलियर प्रॉब्लम। देखिए ये मतलब इतने एडवांसमेंट अब हो गई है कि इसके चांसेस बहुत रेयर हो गए हैं, इसलिए कि पेशेंट पहले ही उसको ऐसी एंटीबायोटिक दे दी जाती हैं आजकल के वो सेट हो जाता है, लेकिन फिर भी ये है कि हम इसको जी जी मैं जी जी वही कह रहा हूँ जैसे डॉक्टर साहब ने बात की ना अभी कि अभी आपने एम्पेरिकल्स को उसकी फाइंडिंग के साथ शुरू कर दिया, लेकिन वो फिर अनकॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके सेक्टर में। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं मेरे हिसाब से इसकी डायग्नोसिस जरूर बननी चाहिए, डायग्नोसिस बननी चाहिए ताकि अगर इसकी कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही है, आईएस परफोरेशन हो रहा है या उसको आगे जाके कोई सर्जरी की जरूरत पड़ती है तो तो मोर्टेलिटी उस रेट। सूरत में तो सर हम इसको ना इसका एक अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन भी हम करा सकते हैं कि वो तो आपने सब बता दिया। अब मैं जी कॉम्प्लिकेशन की तरफ आ रहा था कि आपने जी डेंगू सर के बाद जैसे तो अब अगर अनडायग्नोज हो जाए या अगर इसका रजिस्टर्स है जो आप सेक्टर में दे रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी इसकी मोर्टेलिटी तो है ना इसकी। जी सर, सर सेप्टिसीमिया जो है ना बेसिकली उस क्लिनिकली कैसे कुछ भी क्लिनिकली क्या है? सर एक तो एब्डोमेन डिस्टेंशन हो जाती है उससे। सर्जरी के डॉक्टर बैठे हैं, डॉक्टर स्वेट बस मैं डॉक्टर साहब से मिलूंगा इसको वाइंड अप करें और हम अगले महीने जब इंशाल्लाह बैठेंगे तो अगर कोई टॉपिक है जो हम आपसे डिस्कस करते हैं